نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی حدیث نمبر 804 اور اس والیوم کا چیپٹر نمبر 122 122 سے اپنا سبق آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کچھ سبق پہلے جو ایک موضوع شروع ہوا تھا، کتاب اللباس، لباس کے بارے میں، یعنی اپنا اوڑھنا، بچھونا اور پہننا، اس کے بارے میں کچھ اہم ہدایات اور رہنمائیاں جو کہ ہمیں قرآن مجید سے اور پھر احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، ان کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع تھا، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ بھی اسی کتاب اللباس کے اندر، اسی موضوع کے تحت اس میں بھی جو احادیث آئیں گی وہ ہوں گی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف لباس کے ریلیٹڈ جو مختلف آداب ہیں، ایک تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اور بائیں ہاتھ سے اتارنا لباس، جوتا وغیرہ، جو بھی پھر ریشمی لباس جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ احادیث آئیں کہ مردوں کے لیے تو ریشم جو ہے وہ حرام ہے، ہاں البتہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر دعائیں بھی ہم نے دیکھی کہ لباس اتارنے کی اور لباس پہننے کی دعا، اور نیا کپڑا جو ہے، نیا لباس، اس کی دعا، اور پھر لباس کی، قمیض کی، شلوار کی، خاص کر تہبند جو ہوتا ہے، یا ٹراؤزر یا پاجامہ یا شلوار جو ہے، اس کی لمبائی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے کہ مردوں کے لیے گھٹنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک، اور عورتوں کے لیے گھٹنے جو ہیں وہ چھپانے کے وقت۔ اب اس کے بارے میں بھی بہت سخت احادیث ہم نے سنی تھی کہ جس مرد کا لباس یا تہبند یا شلوار جو ہے یا کپڑا جو ہے وہ اگر گھٹنوں سے نیچے لٹک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اتنا حصہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اور اس کا تواتر سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہم نے دیکھی تھیں، جسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے اپنے جو شلوار یا ٹراؤزر وغیرہ ہے اس کا گھٹنوں سے اوپر رکھنا کس قدر اہم ہے ہمارے لیے، کس قدر ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی متفرق ہم نے بہت سارے موضوعات دیکھے تھے۔ آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 122 سے، جس کا موضوع ہے مردوں کے لیے ریشم کا پہننا، اس پر بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے۔ مردوں کے لیے ریشم چاہے وہ پہننے کے لیے ہو، اوڑھنے کے لیے ہو، بچھانے کے لیے ہو، یا اس کا تکیہ استعمال کرنے کے لیے ہو، وہ ہر طرح سے حرام ہے۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے اس کی ممانعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔
اس موضوع پر ہم آج کی احادیث جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ مختصر احادیث گزری اس موضوع پر، لیکن آگے آنے والی جو مسلسل احادیث ہیں وہ مسلسل اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں منع ہے، اور اگر کوئی ریشم دنیا کی زندگی میں پہنے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اس سے متعلقہ ہمیں کچھ رہنمائیاں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس موضوع میں سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم سے یہاں پر کوٹ کی امام نووی نے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس مت پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اور پھر یہ بریکٹ میں مردوں کے لیے، کیونکہ کچھ احادیث سے عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، تو یہ جتنی ممانعت کی جو احادیث ہیں وہ ساری مردوں کے لیے ہیں، کہ جو مرد دنیا کی زندگی میں ریشم کا لباس پہنے گا اسے آخرت میں پہننا اس کو نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں تو وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوگا جو کہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو ریشم کا کپڑا پہننے والا، اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ اپنے اندر ایک بہت سخت پیغام رکھتی ہے کہ اگر دنیا میں لباس مرد جو ہے وہ ریشم کا پسند کرتا ہے تو آخرت میں اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ریشم کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں، مختلف اوپینینز، مختلف اینگلز بھی اس کے ہمیں پر نظر آتے ہیں، اور مختلف اوپینین جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ خاص کر مختلف اینگلز اگر دیکھیں تو ریشم کا کپڑا اٹ سیلف جو ہے وہ ہمیں کوئی وضاحت اس طرح سے ملے، ہمیں کوئی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ اس کی، اب وجوہات اس کی ملیں یا نہ ملے، جب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا قول ہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اپنی تسلی کے لیے اگر ہم کچھ اور اس میں تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں بھی اگر ہم اس کے اپوزٹ کسی رائے پر پہنچیں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو سب سے پہلا نقطہ جو تو ایک بڑا اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ جب نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے منع کر دیا تو پھر ہمارے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، شرعی عذر جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، شرعی عذر بھی آگے جا کر ایک اس کے بارے میں بھی حدیث ہمیں مل جائے گی۔ تو بہرحال جو ریشم کا لباس جو ہے ایک تو مردوں کے لیے اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ بڑا نرم اور دبیز اور بڑا وہ راحت بخشنے والا، بڑا کہہ لیں کہ سستی پیدا کرنے والے لباس ہے کہ ریشم، اور خاص کر موٹا ریشم اور ریشم کے بنے ہوئے جو چیزیں استعمال کرنے ہیں اس میں آرام دہ اتنا ہے کہ وہ نرم کر دیتا ہے طبیعت کو، یا سلو کر دیتا ہے انسان کی جو جو حص ہے اس کو۔ تو اس اعتبار سے مرد جو ہے تو وہ تو وجاہت اور بہادر اور شجاعت اور بہادری کی علامت ہے، تو اس اعتبار سے اس کو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ بہادری کی علامت ہو۔ تو عام طور پر یہ بھی رائے پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تکبر اور غرور، کیونکہ ریشم جو ہے وہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اس کی چمک دمک بھی ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے میٹرز بھی آتے ہیں، تکبر اور غرور جو ہے وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اور تکبر اور غرور جو ہے اس اعتبار سے جو اگر عورت بھی کوئی پہنے گی تو وہ بھی اس کے اوپر پکڑ ہوگی، کیونکہ تکبر اور غرور جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں پسند نہیں کرتا انسان میں، تو تکبر جو ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے کبر۔ اسی طرح سے یہ ایک اور حدیث جو ہے، یہ جو شرح لکھی ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، انہوں نے ایک اور حدیث کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، جو کہ آ، مستدرک حاکم کی ہے، جس میں ہے کہ بزازہ من الایمان، بزازہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ بزازہ کیا ہے؟ بزازہ ایمان کا حصہ ہے۔ بزازہ جو ہے اس کا مطلب ہے پرتکلف لباس، قیمتی پوشاک اور آرائش و زیبائش کی بجائے سادہ اور بے تکلف رہن سہن اختیار کرنا بزازہ ہے۔
تو بزازہ جو ہے وہ ہمیں مستدرک حاکم اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، اور کتاب الزہد للامام احمد میں بھی ہے کہ اس میں بزازہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور بزازہ کا مطلب ہے پرتکلف لباس اور قیمتی لباس کی بجائے زرق برق اور آرائش و زیبائش سے مزین جو لباس ہے اس کی بجائے سادہ اور بے تکلف رہن سہن اور لباس وغیرہ جو ہے وہ اپنے لیے اگر پسند کیا جائے تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی، کیونکہ ریشم میں کچھ ایسی ظاہری خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو کہ زرق برق اور اس کی چمک اور اس کی پھر ایک اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں سادگی کی طرف رہنا چاہیے۔ بہرحال مردوں کے لیے جو ریشم ہے اس کو استعمال کرنا ہر ممکن نہیں، ہمیشہ اس سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے، یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں، اور مسلم میں اور بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں ریشم ریشم پہننے والا مرد جو ہے آخرت کی زندگی میں وہ ریشم پہننا اس کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسے کسی بھی ٹھکانے سے۔ تو ایسے اس سے پہلے گناہ کبیرہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا گناہ جس کے لیے سخت سزا اور جہنم میں آخرت میں سخت اس کی وارننگ جو ہے وہ ملے، تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ریشم کے بارے میں جو حدیث ہم نے دو دیکھی کہ جو مرد ریشم کا کپڑا ریشم اپنے لیے پسند کرے گا دنیا کی زندگی میں، تو آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ ایک بڑی سخت وعید ہے، تو اس کی بنیاد پر پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریشم کا لباس مرد کے لیے کبیرہ گناہ ہے، جس سے اگر مرنے سے قبل خالص توبہ نہ کی تو جنت سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل مرد حضرات خصوصاً نوجوان عورتوں کے سے ریشمی لباس بکثرت پہن رہے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آج کل ہم اگر اپنے لباس کی طرف نظر دوڑائیں تو اس میں بہت ساری خامیاں جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں مل جاتی ہیں۔ ہمارے تو کچھ ایسے ایسے اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایک طبقہ یا ایک گروہ یا ایک قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے جو محفلیں جماتے ہیں تو ان میں ان کے جو صاحب محفل جو ہوتے ہیں کہہ لیں، یا ان کے میزبان کہہ لیں، یا ان کے مہمان خصوصی کہہ لیں، وہ ایسے زرق برق کپڑوں میں اور رنگیلے اور ریشم کے بنے ہوئے اور پھر رنگ برنگے ایگزیکٹلی عورتوں کی طرح سے، تو اس طرح کے اور پھر کچھ اس طرح سے نعتیہ کلمات وغیرہ پڑھنے والے ان کی بھی ایسی عادات یا ان کے بھی ایسے ہم نے کچھ معاملات دیکھے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ضرور احساس کرنا چاہیے اس چیز کا کہ ایک تو عورتوں سے مشابہت جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، نان مسلم کی مشابہت جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور پھر ریشمی لباس جو ہے اس سے بچنا جو ہے وہ تو ان احادیث سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ تو آج کل ہمارا فیشن، ہمارے جو پہناوا ہے اس میں اس کا بہت دخل اور رول جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، تو ہمیں اس میں ضرور احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے۔ اسی طرح سے آگے حضرت انس سے مروی بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہی حدیث اس سے پہلے ہم دو دفعہ دو تین احادیث جو ہے وہ ایک ہی موضوع پہ اوپر جمع ہو گئی اوپر۔ اگلی روایت جو ہے وہ ابو داود سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم پکڑ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا پکڑ کر اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یعنی ریشم دائیں ہاتھ میں رکھ کر اور سونا جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم جو ہے اور سونا جو ہے وہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ یعنی ریشم بھی اور سونا بھی، سونے کے زیورات، سونے کا کاروبار کرنا وغیرہ وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ سونا حرام چیز نہیں ہے ویسے ایز اے پروڈکٹ، لیکن
पहनावा जो है सोना का, सोने का जेवरात वगैरह की शक्ल में या किसी और शक्ल में, वो मर्दों के लिए। हाँ, औरतों के लिए उसकी भी इजाज़त है। इसी मौजू पर अगली हदीस जो है वो भी हम देखते हैं हज़रत अबू मूसा अशरी से, जो कि तिरमिज़ी में है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम का लिबास और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है और इनकी औरतों के लिए हलाल है। तो रेशम और सोना ये दोनों जो हैं वो मर्दों के लिए हराम और औरतों के लिए हलाल है, और ये दोनों जो हैं वो एक हद के अंदर रहना चाहिए। खासकर औरतें भी अगर रेशम पहनती है तो उनमें भी रवादारी और सादगी और इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए। फिर महरम ना महरम जो है उसका तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और सोना जो है वो भी, अगर औरतें उसको भी मतलब अगर वो तकब्बर और गुरूर और अपनी अमारत और अपनी मतलब पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगी तो वो भी किबर में आ जाएगा। और मर्दों के लिए तो फिर सोना वैसे भी हराम है। हाँ, तो इसमें जो फवायद में इसकी और भी कुछ बातें उसके बारे में लिखी गई हैं कि सोना जो है वो हलाल कर देना का मतलब ये नहीं है, औरतों के लिए सोना जो है वो जायज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोने के बगैर शादी नहीं हो सकती, या सोने के बगैर बेटी की रुखसती नहीं की जा सकती, या इस तरह के मैटर। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि काबिल गौर हैं, काबिल तवज्जो हैं। और जैसा कि गुनाह के बारे में बड़ा साफ सा आसान सा बिल्कुल कुलिया है कि जो दिल को खटके किसी के, वो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर अपने दिलों में झांके तो हमारे दिलों को खटकती हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर हम उसको खटकाना नहीं चाहते। तो हमें अपनी ज़ाहरी जो ज़िंदगी है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को बेहतरी करने की ज़रूरत है। उनमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी रस्म व रिवाज और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फरसूदा किस्म के ख्यालात, नज़रियात जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हमें बहरहाल इस इन बातों में ज़रूर एहतियात रखनी चाहिए, अपनी सादगी और अपनी रवादारी जो है उसका एहसास करते हुए, ना कि तकब्बर और गुरूर या इस तरह का दिखावा जो है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे पहनावे में इस तरह से नजर आए। अगली हदीस जो है हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, यह भी बुखारी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से और रेशम का लिबास पहनने से और उस पर बैठने से मना फरमा दिया। अह, सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने से भी और रेशम का लिबास पहनने से भी और उस पर बैठने से भी मना फरमा दी। रेशम का लिबास और उस पर उसका इस्तेमाल मर्दों के लिए हराम, सोने और चांदी के बर्तन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो तो दोनों मर्दों और औरतों दोनों के लिए बराबर इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्योंकि इसमें भी एक तो पैसे का ज़िया जो है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसमें दिखावा बहुत ज़्यादा है, तकब्बर तो बहुत ज़्यादा है। तकब्बर की वजह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जिसके पास जो पैसा है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो दर हकीकत वो अल्लाह का गज़ब जो है वो अपने नाम अमाल में जमा कर रहे होते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने अगर किसी की रस्सी दराज कर रखी है, किसी को वसी रिज्क अता किया है, तो उसको वो इस तरह से किबर और गुरूर करते हुए, तकब्बर करते हुए उसको लौटाएगा, तो यकीनन वो अल्लाह के गज़ब को भड़कावा देने के लिए है। और इंतहाई अफसोस, इंतहाई अफसोस, इंतहाई अफसोस के पास साथ कि सोना चांदी के बर्तन जो है वो तो बहुत पीछे रह गए हैं। मतलब यहाँ पर तो प्रैक्टिकली गोल्ड प्लेटेड किस्म के वॉशरूम की जो सैनिटरी एक्सेसरीज जो हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं वॉशरूम में भी। बाकी घर में इर्द गिर्द जो है वो तो डेकोरेशन पीसीज और ये वो तो मतलब वो अलग या छोटी चीज़ें रह गई हैं वॉशरूम्स के अंदर। और ये फिर मतलब अब ढकी छुपी बात भी, ऐसी बात भी नहीं है कि जो सिर्फ क्यास पर हो, मुबनी हो। ये हकीकत में ऐसा जो है वो नज़र आता है, और कुछ जो मामलात हमें इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं, तो देखें ज़रा कि इंसान जो है वो अपने गरूर की हदों को किस कदर पामाल करता है, और फिर किस कदर वो अल्लाह के गज़ब का शिकार होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी सारी बातों से। आमीन या रब्बल आलमीन। अब यहाँ पर फवायद में रेशम के बारे में फर्दर एक दो बातें जो है वो लिखी गई हैं कि रेशम जो है जो खालिस रेशम है वो तो सिल्क वर्म जिसको कहते हैं, रेशम का कीड़ा जो है उससे वो
तबई या नेचुरल तौर पर वो थ्रेड जो है वो हासिल किया जाता है और उससे फिर वो कपड़ा बुना जाता है। और उसके बहुत सारे उसमें बायो फैब्रिक भी कह सकते हैं इसको, कि उसमें बहुत सारी ऐसी मतलब अज्जा होते हैं जो कि बायोलॉजिकली प्रोसेस किए होते हैं उस कीड़े के जरिए से। तो वो कुछ मैटर्स में फ़ायदेमंद भी होती हैं, जिसका आगे जाकर इस्तिस्ना में एक हदीस हमें मिलेगी। लेकिन इसके अलावा कुदरती रेशम के अलावा मसनूई रेशम जो है, आर्टिफिशियल फाइबर जो है, उसके भी कपड़े बहुत सारे बनाए जाते हैं जो कि देखने में, उसकी लुक में और उसकी जो फैब्रिक है, उसके एतबार से बिल्कुल वो रेशम से मिलते जुलते हैं। तो इसके बारे में ये जो शरह लिखने वाले हैं, शारे जो हैं, सलाहुद्दीन यूसुफ, उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े जो है वो मर्दों के लिए हराम नहीं होंगे जो कि मसनूई रेशम से तैयार करता है, जो कि आर्टिफिशियल फाइबर जो है उससे बनाए जाते हैं, जो कि कॉटन नहीं बल्कि प्लास्टिक और इस तरह की जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करके केमिकली उससे धागा बनाकर तो उसे बनाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें भी एहतियात करने की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई रेशम का मजा लेने के लिए अगर पहने तो उसको थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, अगर कोई दिखावे लिए के लिए कर रहे हैं तो उसको एहतियात बरतना चाहिए। और बल्कि ऐसे कपड़ों से इज्तनाब भी करें जो कि बाद में शक व शुबे में डाल दे कि पता नहीं इसकी क्या हकीकत है, हैसियत है इस्लाम में। और इसके अलावा यहाँ पर जो बोस्की लिखा गया है, बोस्की और सिल्की कपड़े, बोस्की और सिल्की जो है, जो जो ओरिजिनल बोस्की है, वो जो है वो तो खालिस रेशम से ही बनती है। मसनूई रेशम से भी कुछ कपड़ा वपड़ा जो है वो बना जाता है, उसके बारे में कुछ इबहम या उसके बारे में कुछ शक या रियायत जो है वो हमारे उलमा अगर देते हैं तो वो कोई उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा ले, लेकिन इख्तियार जो है वही हमारे लिए बेहतर है। और खालिस रेशम और इस तरह से उसकी बाई प्रोडक्ट हैं, उससे मर्दों को ज़रूर इख्तियार जो है वो रखनी चाहिए। और इस हदीस में ना सिर्फ रेशम के कपड़े बल्कि रेशम की जो बुनी हुई जो बाकी चीज़ें हैं, जैसा कि उसका लिहाफ, उसके ब्लैंकेट्स वगैरह और उसके गद्दे और तकिया वगैरह जो है, उनको भी हमें एहतियात करना चाहिए इस्तेमाल करने में। और क्योंकि उन्हें मर्द और औरत दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए औरतों के लिए भी उसकी ममानत जो है वो इस हदीस में हमें थोड़ा सा उसकी तरफ अंदाज़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया वाज़ेह तौर पर कि इस तरह के जो पहनावे के अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें दूसरी हैं, गद्दे तकिए वगैरह, ये तो मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं। और उसको जब इस हदीस में मना किया गया तो इसका मतलब है कि हम औरतें जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उस ममनू में, कि तकिए और गद्दे वगैरह जो हैं वो भी औरतों के इस्तेमाल के लिए भी मना है। इसमें अब इस्तिस्ना जो है वो हमें अगली हदीस में मिलता है, हदीस नंबर 810 जो है। ये चैप्टर इसको दिया गया है उन्वान, जिसको खारिश हो उसके लिए रेशमी लिबास पहनने का जवाज। तो खारिश की सूरत में रेशमी लिबास जो है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हुमा को रेशम का लिबास पहनने की रुख्सत दे दी, क्योंकि उन दोनों को खारिश थी। अब ये खारिश या एलर्जी या एक्जिमा या इससे मिलती जुलती कुछ बीमारियां जो हैं, उसमें अब यहाँ पर थोड़ा सा इस्तिस्ना हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो सहाबा कराम को रुख्सत दी कि वो रेशम का लिबास जो है पहन सकते हैं। इसकी भी अगर हम बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो इससे पहले क्यों तज़किरा हुआ कि क्योंकि रेशम जो है, रेशम का कपड़ा, खालिस रेशम जो है, वो रेशम के कीड़े, रेशमी कीड़े, सिल्क वर्म जो है उससे बनती है। और सिल्क वर्म का जो लुआब है, उसकी जो थूक है, जिसके जरिए से वो बनता है, कपड़ा बनता है या धागा थ्रेड को प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो उसमें कुछ बायो केमिकल इस तरह के होते हैं जो एंटी फंगस होते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, या एंटी बैक्टीरियल उसमें कुछ कंपाउंड जो है वो भी पाए जाते हैं। लेकिन वो सूरत है खालिस रेशम की। खालिस रेशम जो है उसमें इस तरह की खसूसियात जो है वो पाई जाती हैं, गो कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, इस तरह की खारिश वगैरह की मेडिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। कुछ केसेस में उसका इफ़ेक्ट जो है वो देखने में मिला है, लेकिन हमेशा उसका कोई इफ़ेक्ट जो है, इम्पैक्ट उस तरह से कोई बड़े असर के तौर पर नहीं उसको प्रैक्टिस किया गया या उसका तजर्बा इस तरह से किया गया। हाँ, अलबत्ता
रेशम जो है वो पसीने को जذب करता है ज़्यादा जल्दी से, और नर्म होता है, रगड़ का एहसास रेशम से कम होता है। तो इस एतबार से उसकी जो ज़ाहरी खसूसियात हैं वो भी इस तरह की एलर्जी और एक्जिमा वगैरह जो है उसमें कुछ राहत का या कुछ तो सुकून का बायस होती है। तो इस एतबार से भी अगर हम देखें तो कुछ रेशम जो है वो मदद कर सकता है, लेकिन वो खालिस रेशम की बात हो रही है। अब आजकल जो रेशम जो है वो प्रोसेस जब किया जाता है थ्रेड को, तो उसको डाई करने के लिए, टैनिंग करने के लिए, और उसका जो धागा है उसको मजीद स्मूथ करने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह या कुछ इस तरह से कंपाउंड वगैरह में उसको भिगो कर उसको धोया जाता है, जिसके वो जो असल जो उसके असरात हैं, जो जो रेशमी कीड़े के, जो उसके लुआब के जो असल केमिकल या असल उसको बायो मेडिकल असरात जो हैं वो बहुत डिफ्यूज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस किया हुआ रेशम जो है उसको फिर पहनने का फायदा भी नहीं है, अगर अगर कोई बायोलॉजिकली भी अगर कुछ फायदा उसमें रेशम में है तो। बहरहाल ये हदीस हमें एक हल्की सी तखफीफ देती है, रुख्सत देती है कि ऐसी किसी बीमारी की सूरत में अगर रेशम जो है वो फायदा मंद है, तो उससे फायदा जो है वो उठाया जा सकता है। ये ऐसी रुख्सत जो है वो शराब के बारे में भी हमें मिलती है। दीगर जो मामलात हैं, दीगर जो हराम चीज़ें जो है उसके बारे में भी ऐसी, ये दीन की हमारी खूबसूरती है कि किस तरह से हराम करदा चीज़ों के अंदर भी थोड़ी सी तखफीफ जो है वो हमें दे देती है। अब रेशम के बारे में अगर हम देखें तो जैसे ये ड्रेसिंग की जाती है, पट्टी जिसे की जाती है जो कि जख्म के ऊपर रखी जाती है, अगर खालिस रेशम मेडिकली अगर उसको इफादियत दे सकती है उस जख्म को साफ करने के लिए या उस एलर्जी को साफ करने के लिए, तो ड्रेसिंग के तौर पर, बैंडेज के तौर पर रेशम की पट्टी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि पूरा रेशम का लिबास पहना जाए। बहरहाल जिस भी अंदाज से इस्तेमाल करना, ये हल्की फुल्की ममानित, लेकिन इसमें भी नीयत, इरादा और बाकी चीज़ें जो है वो शामिल होगी। अगर किसी ने बहाना ये बनाया कि मुझे एलर्जी है, और उसकी अपनी सोच तो ये थी कि मैं रेशमी कपड़ा पहनूं और मेरा शौक है रेशमी कपड़ा पहनना, तो ऐसी सूरत में वो कैसे वो गिरफ्त से बचेगा अल्लाह ताला की, जिसके बारे में हमने ऊपर दो तीन हदीस पढ़ी कि जो दुनिया की जिंदगी में रेशम पहना, आखिरत में उसको रेशम जो है वो नसीब नहीं होगा। इसी तरह से अगली जो हदीस है, ये मौजू जो है वो है चीते की खाल पर बैठने और उस पर सवारी करने की मुमानत। चीते की खाल, आप रेशम के अलावा यहाँ पर चीता जो है, चीता या दरिंदा जो है, अगली रिवायत जो है वो दरिंदों के मतलब होगी। तो चीता, ये अबू दाऊद से मरवी है, अबू दाऊद में रिवायत है ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रेशम और चीते की खाल पर मत सवार होना। रेशम के साथ साथ चीते की खाल जो है उस पर भी सवार होने या उसका इस्तेमाल करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। इसी तरह से अगली हदीस जो है वो भी इसको हम देखते हैं अगर इसके साथ, कि हजरत अबू अल मलीह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों का इस्तेमाल मना फरमाया। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई वगैरह में इसकी सनदें सही हैं कि दरिंदों की खालें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालों से मना फरमा दिए। दरिंदे, और ये चीता जो है ये भी दरिंदों में शामिल होता है। तो दरिंदे जो हैं वो जानवर जो खूनख्वार किस्म के जानवर है, जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो दरिंदे हैं। वो सारे के सारे जो है वो हराम में भी आते हैं, वैसे भी खाने पीने के एतबार से। तो दरिंदों की खालों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। अब दरिंदों की खालें जो हैं उसमें चीता भी शामिल होता है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ तरह की राय जो है वो मिलती है, क्योंकि एक और हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें एक इजाज़त है कि उसका हवाला जो है वो यहाँ पर हमें मिलेगा। कल मैंने उसका हवाला देखा, लेकिन मैं उसको नोट करना भूल गया। बहरहाल एक और हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दबागत की हुई जो खालें हैं वो इस्तेमाल करना जायज़ है। दबागत जिसको टैनिंग कहते हैं, या जिसको चमड़ा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, खालस जो खाल होती है वो तो उसके ऊपर तो बहुत सारे उसके ऊन और बाल वगैरह होते हैं, और फिर वो
मतलब हराम जानवर से हासिल की जाती है, तो जब उसको प्रोसेस किया जाता है टैनिंग प्रोसेस के ज़रिए से, उसके फिर केमिकल वगैरह लगाकर उसके बाल वगैरह बिल्कुल साफ़ करके मुख्तलिफ केमिकल्स में उसको भिगो कर उसके अंदर मतलब तब्दीलियाँ जो आ जाती हैं, केमिकल चेंजेस भी आ जाती हैं उन खालों के ऊपर, तो उन खालों का इस्तेमाल जो है वो जायज़ है। उसको दबागत कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में उसको टैनिंग प्रोसेस कहते हैं, या चमड़ा साजी जिसको कह सकते हैं वो भी कह सकते हैं। चमड़े की इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर है। लेकिन उसके बारे में भी उलमा में इख्तलाफ है कि जो हराम जानवर है, जो दरिंदे जो हैं, उनकी खालों के इस्तेमाल जो है उसमें हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ उलमा ने अपनी मुख्तलिफ राय जो है वो दी है। कुछ के ख्याल जो है वो ये है कि दबागत के बगैर जो वैसे ही अनप्रोसेस्ड जो खाले हैं वो तो सारी हराम है, उसमें तो सारे उलमा जो है वो इत्तेफाक करते हैं। हाँ, टैनिंग के जरिए से जो चमड़ा साजी के जरिए से जो खालें जो है इस तरह से तैयार की जाती हैं, बाद में उसके बाई प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें जैकेट्स वगैरह बनती हैं, उसमें ये पर्स वगैरह बनते हैं, उसमें जूते बनते हैं, उसमें दीगर ये कारपेट्स वगैरह जो हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, डेकोरेशन के लिए। जो हमने कई दफ़ा घरों में देखा होगा कि वो किसी जानवर की खाल की शक्ल में बनाकर मतलब सेंटर कारपेट पीस जो है उसके तौर पर भी रखा जाता है। तो मुख्तलिफ तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो प्रोसेस्ड जो खाले हैं दरिंदों की, उनके बारे में भी फिर उलमा की दो मुख्तलिफ आरा है। कुछ का ख्याल है कि क्योंकि वो दरिंदों की खालें ही हराम है, तो चाहे वो प्रोसेस करके पहने या चाहे अनप्रोसेस करें वो हराम ही रहेंगी। लेकिन कुछ का ख्याल है कि वो एक हदीस जो है उसके जरिए से ये, बल्कि हाँ, ये इस हदीस का रेफरेंस यहाँ पर मौजूद भी है कि कुल्लु अहाब दबग फकद तहर, कि जिसने खाल को भी रंग दिया वो पाक हो गई। जिसने जिस खाल को भी रंग दिया गया वो पाक हो गई। या इस रेफरेंस इसी में मिल गया मुझे, मैंने एक दूसरी जगह पर देखा था बाहर। तो ये रंग दिया या दबागत जो है ये वो पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है जो केमिकल प्रोसेस के जरिए पहले जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता था। बहरहाल वो उलमा जो है वो उनका भी ख्याल है कि वो जो दबागत की जो खाले हैं वो शायद कुछ दूसरे जानवर थे या उनमें भी कुछ उनका, बहरहाल इख्तलाफ ज़रूर है। तो हमें ये थोड़ी सी इसमें एहतियात ज़रूर रखनी चाहिए। और ख़ासकर वो चीज, वो जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं वो आम तौर पर बहुत महंगी भी होती हैं। पर्स वगैरह है या जूते वगैरह हैं जो कि इस तरह के खालों से बनाए जाते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों से वैसे ही एहतियात रखनी चाहिए। एक जूता जो है वो अगर मिसाल के तौर पर 100, 150, 200 रुपये में मिल जाता है, ये मैं कतर की करेंसी की बात कर रहा हूँ, बल्कि 50, 60, 70 रियाल में भी मिल जाएगा। 100, 150, 200 रियाल में एक अच्छा जूता जो है मिल जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन वही जूता जो है वो हजारों रियाल में या मतलब कई कई हजार रियाल में भी जूता आता है। तो जिसकी इस्तात है वो ले तो सकता है, लेकिन बजाय इसके कि इतना पैसा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर खर्च किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखते हुए सादगी इख्तियार करने, फजूल खर्ची से इजतनाब करें और अपने मामलात को आसान रखें, तो इसमें हमें दोहरे फायदे जो है वो मिलते हैं। बहरहाल ये दरिंदों की खालों जो है उनके बारे में भी जैसा कि तज़किरा हुआ, मुख्तलिफ तरह की आरा जो हैं वो हमें मिलती हैं। तो हमें उस बारे में भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ये ऐसी ज़रूरत नहीं है जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। आराम से इन चीज़ों के बगैर हम गुजारा कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे अल्लाह ताला ने जो रिस्क अता किए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। अगली हदीस जो है वो है नया लिबास, या अगला मौजू है नया लिबास या नया जूता पहनते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाए। जब भी कोई नया लिबास या नया जूता, ये नए लिबास के मुतलका एक पूरा चैप्टर जो है वो गुजर चुका है कि उनकी दुआएं जो है वो मसनून हमें मिलती हैं अहादीस में। तो यहाँ पर है, ये अबू दाऊद की रिवायत है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा जेब तन फरमाते तो उसका नाम लेते, मसलन पगड़ी, कमीज या चादर, और ये दुआ पढ़ते: ऐ अल्लाह, तेरे लिए तारीफें हैं, तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया है। मैं इसकी भलाई का और जिस गर्ज के लिए ये बनाया गया उसकी भलाई का तुझसे सवाल करता हूँ, और उसके शर से, और जिस गर्ज के लिए ये बनाया गया उसके शर से तुझसे पनाह तलब करता हूँ। तो ये यहाँ पर अरबिक में भी ये दुआ लिखी गई है।
ये अरबिक में भी ये लिखी हुई हमारे सामने नजर आती है, अल्लाहुम्मा लका। ये अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, अंत कस अंत कसौतनी ही अस्अलुका खैरहु व खैर मा सुनी अलहु व आऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनी अलहु। तो ये दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो करते थे जब भी वो नया कपड़ा या नया जूता या नई कोई चीज़ इस तरह से पहनते थे, जो जिसमें उस चीज़ का जो भलाई है उसका सवाल अल्लाह ताला से, और उस चीज़ की जो में अगर कोई शर छुपा हुआ है तो उस शर से फिर अल्लाह ताला की पनाह जो तलब करने की ये दुआ है। अपने मौजू के एतबार से, अपने मानी के एतबार से भी ये बहुत खूबसूरत दुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब मसनून दुआ है। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये दुआ जो है इसको याद करें, या दीगर कुछ दुआएं जो हैं उनमें से कुछ दुआएं जो हैं वो याद करें, और जब भी हमें मौका मिले तो उन दुआओं को हम ज़रूर पढ़ें, उनसे फ़ायदा हासिल करें। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए अहम भी है। अल्लाहुम्मा लका अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत कसौतनी ही असअलुका खैरहु व खैर मा सुनी अलहु व आऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनी अलहु। तो ये दुआ जो है अगर हम याद कर सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ऐसे छोटे छोटे मैटर्स में भी कुछ अपनी बेहतरी ला सकें। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करिए, मैं आपके सामने पढ़ता तो ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बहुत बहुत पीछे और आ रही हूँ इन चीज़ों से। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, हम सबको इन बातों के ऊपर अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी तरह से अगली जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 126, 126, लिबास पहनते वक्त दाएं तरफ से इब्तदा करने का इस्तेहबाब। तो इसके बारे में एक पूरा चैप्टर जो है इससे पहले गुजर चुका है कि लिबास वगैरह या जो भी काम किया जाए तो शुरू किया जाए तो वो दाएं तरफ से, दाएं हाथ से शुरू किया जाए। तो ये सुन्नत तरीका है। जब उतारा जाए लिबास को, जब उतारा जाता है तो वो बाएं हाथ से शुरू करना है, और जब पहना जाए तो दाएं हाथ से शुरू किया जाए। ये हमें पूरा चैप्टर जो है इससे पहले मिला था, तो इस वजह से इस चैप्टर में उसकी हदीस जो है फर्दर दोबारा कॉपी नहीं की गई। तो ये हमारा आज का सबक था। इसके बाद अगला जो सबक है वो अगली मजलिस से इंशा शुरू करेंगे। किताबु आदाब नौ में व इज्तिबाह व इस्तिजा वल क़ुऊद वल मजलिस वल मजलिस वल वल जलीसी वल रोया, यानी सोने, लेटने, बैठने, मजलस, हम नशीन और ख्वाब के आदाब जो हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है कि सोते वक्त, लेटते वक्त, बैठते उठते मजलस वगैरह में या ख्वाब का अगर देखें तो उनके क्या आदाब हैं या उसके बारे में कैसे हम डील करें। तो जब हम आइंदा अपनी मजलिस से शुरू करेंगे तो देखेंगे उसमें हमें क्या नसीहत मिलती है। बहर यहीं पे हमारा आज का खतबा ख़त्म होता है इस दुआ के साथ कि बहुत सारी बातें जिसमें हमें अपने आप को, अपने मामलात को, अपनी रोज़मर्रा की आदत को दुरुस्त करने की, संवारने की, उसको इस्लाह करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन सारी बातों से नसीहत पढ़ कर अपने मामलात को दुरुस्त करें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कुछ इजाफा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, इजाज़त चाहते हैं फिर इसके साथ ही सबको ज़रूर मुझे याद रखें। अल्लाह ताला सबको हामी और नासर हो। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला सब में हमारे लिए आसानियाँ करे। हमारी मुश्किलात में, हमारी तकलीफ़ों में, हमारी आज़माइशों में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद हमारे साथ शामिल हाल करे। हमें ईमान पर कायम रहने और ईमान के ऊपर अल्लाह ताला हमें मौत जो है वो हमारे नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।